नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सरहद। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक अवार्ड फंक्शन का शुरुआत हुआ है, जिसमें हम आपको तमाम गेस्टों से मिलवाएंगे और इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको सारी चीज़ें साझा करेंगे। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़। Ladies and gentlemen, हमारे living legend. May we all put our hands together and cheer for Honorable Indresh Kumar Saab. और आज की ये महफिल जिन्होंने सजवाई और जिन्होंने सजाई, उन सबको बहुत 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 मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ हमारे Honorable Member of Parliament, हमारे दूसरे भी Honorable Chief Guest कृपया मंच पर आ जाएं. May we please give it up for our core committee and ये special certificates है उन सब के लिए. और दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट जिसका हम सवेरे से इंतजार कर रहे हैं. May we kindly request our honorable chief guest, honorable member of parliament Lok Sabha, Dr. Ravindra Narayan Behera sir, to address everyone. Jai Jagannath. All the dignitaries in the dais, the awardees and press media and the organizer, Dr. Abhiji, and all the other members of this Global Excellence Forum. We are very fortunate to be associated with you the entire day, I can say, in this August gathering. Thanks. We are from the Mahan Bharata, the India. It is from origin, from Ramayana, Mahabharata, all the great achievements of the world, great innovation of the world, great writings of the world has been innovated from this Mahan Bharat. Say Ramayana, say Mahabharata, say anything, whatever they are, all the learned outputs, knowledge bases of this world is originated from this Bharat, this great Bharat,
but the Western and other people have accumulated it, consumed it, and devoted to given in a new form, in the form of science, technology, digital, or any other media form. You say the Pushpak Jan from Ravan, or there is a Sadhu in Shangprabha who was teleported the Hanuman team to Bay of Kanyakumari, and that is the present virtual reality. In the age of internet, age of artificial intelligence, we are talking about this, but we are neglecting our old and ancient upbringings like the Veda or Puranas or Vedanta, where science, technology, everything was inherited from that. So Global Excellence Award is a forum to encourage the excellence. In the morning, someone has explained about the excellence. In the morning, the excellence means those who have excelled well in all fields, maybe in social service, maybe science, maybe technology, maybe any other forum. Those who have excellence, those who have done excellent work, those who have achieved anything on innovation, those who are awarded thanks to the GEF Forum, the Global Excellence Forum, for identifying this and awarding them and encouraging them to do their work for the future and further enhancement, and it will be next generation or next upbringings will be excited and enlightened to get this inspiration from this forum. So our Honorable Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Modi ji, has put this entire world to make it a new India, a Nutan Bharat in 2029, with the 4 forums. One is youth, those who are called Z generation. Second is Mahila, women, the woman power, Matru Shakti. Third is your farmer, Krishak, those are our Annadata. Fourth is Garib. With these 4 classification, we will make New India a Bikasit Bharat. Bikasit Bharat means India will be a prosperous in the world, the number 1 country in the world, and it will generate all the internal things, all the knowledge bases from India. It will spread to the entire world and the global forum. So this Excellence Award, those who are getting, I congratulate them. I also welcome all of them, all others, those who are not got it, to get it further. So let us bring India to a new forum, to a global height, and make it a greater height, and in world, it will be number 1 country in this world, and the Z generation, they are to whom we call the new generations, they will be the harbinger of building New India with the women and other 2 classification. Thank you very much. Global Namaste and a very lovely hello to all the wonderful souls across the world. Truly overwhelmed and elated to be here. My name is Simran Ahuja. I'm an actress. My movie Simran has won accolades with the release going international with 14 countries and of course all over the cities across India. I'm truly overwhelmed and elated by all the love that I've received. Besides, I'm known as the international celebrity anchor, be the prestigious IFA, Filmfare, or the Oscars Academy. I've been truly lucky, I would say, to be a part of the utmost prestigious events. Today we are here to celebrate the Global Excellence Forum 2K24. This is the 5th edition of the Indian Icon Awards. आज जो मैंने यहाँ पर जो सुबह 9 बजे sharp 9 AM यहाँ पर जो मैंने recipients देखे हैं, they are from all across the country and across the globe. And especially, I don't get to see or witness so many recipients from Northeast, right from Arunachal Pradesh to Orissa to Kolkata to, of course, Maharashtra state. We have our recipients from all across, which is what makes it very, very special. So I'm here to congratulate Ravi ji, Jitendra ji. Heartfelt congratulations to you for this magnificent celebration. Along with this, of course, our respected Honourable Member of Parliament se lekar, we have Indresh Kumar ji, our veteran, and of course हमारे living legends जो आए हैं यहाँ पर Dr. Sandeep Marwa से लेकर to all our legends who are here to inspire us, to motivate us further. It is truly a magnificent day. ग्लोबल एक्सीलेंस फॉर्म जो उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जो हर फील्ड में देश के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और उनका मनोबल आप अवार्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं. मेरी ढेर सारी बधाई उन सबको. मेरा नाम ऋषि बुटानी है. मैं मुंबई रहता हूं और ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया 2024 में. और
इस तरह की प्रशंसा मिलती रहती है, अपने को नवाजा जाता है अवार्ड से, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। I'm Reena Chopra, founder and CEO Sar Holistic Wellness, and I'm here in Global Excellence Forum for the women empowerment, women well-being, and I'm very excited. I won the prize as modern parenting coach and also as somebody representing child psychology and women well-being, especially mothers. Since the world has evolved and there have been a lot of women who are working, especially mothers, so they carry and experience a lot of modern parenting challenges being a busy mom. So Reena Chopra is on a mission to empower minimum 1 million mothers in 2 years so that they can get connected to self to raise kind, connected, conscious children for a connected nation. मैं डॉक्टर रमेश कुमार बोरकुटे फ्रॉम चंद्रपुर युवा फाउंडेशन इन महाराष्ट्र, और मुझे आज ग्लोबल एक्सेलेंस फाउंड के द्वारा इंडियन आइकन अवार्ड दिया गया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ रवि जी का और उनकी टीम का कि ताकि उन्होंने हमें एक मोचोट दिया, एक हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को वो बुलाकर, मतलब एक उनकी प्रेरणा, उनको मोटिवेट करने के लिए वो हमको बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं, और उसके द्वारा हमें पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में हम लोग वहाँ पे कार्यकर्ता अपने दिखाते हैं। तो उसके बाद मेरा काम है सामाजिक हेल्थ एंड एजुकेशन, सिका आणि कमवा, मराठी में है सीखिए और कमाइए। तो उस माध्यम से हम रोज़गार को संबंधित बहुत सारे लोगों को सिखाते और उनको रोज़गार दिलाते। I am Swati Sharma, Director of White Swan Appliances. Here at Global Excellence Forum, Indian Icon Awards 2024, I have been awarded under the category of Revolutionary Innovation of the Year. White Swan में हमने ऐसा गैस स्टोव बनाया है जो कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और आपके अकॉर्डिंग प्रीसेट टाइम पे ये गैस को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसमें डुअल मोड है जो कि आपको नॉर्मल मोड पे भी आप काम कर सकते हैं और टाइमर पे भी इसको चला सकते हैं। ये फ्यूचर है किचन्स का और हर होम की, हर हाउस की, हर किचन की, हर विमेन की नीड है। पहले जीपीएन ग्रेट न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये दिल्ली कनॉट प्लेस पे ली मेरिडियन 5 स्टार होटल पे हमें ये सपना की तरह हम महसूस हो रहा है कि हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने फील्ड के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे कि ये ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम ने इस तरह से बहुत बड़ा जो है इंडियन आइकॉन अवार्ड हमें मिलने वाली है। हम सबसे पहले तो ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सारा इंडिया, कोई भी प्रांत के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी वस्त्र पहनने वाला हो, लेकिन एकत्रित होकर के समाज में किस तरह से काम करना है, समाज को ऊपर करने के लिए, ऊपर ये डेवलप करने के लिए अपना रीति रिवाज या अपना खान पान या अपना जो भी संस्कृति को कायम करने के लिए जो इतना बढ़ावा दे रहा है। आई एम डॉक्टर रोजलिन फ्रॉम भुवनेश्वर और दिस इज़ वेरी ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ के, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया गया है और सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ठीक वे में किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों को मिलके बहुत खुशी हुई। और एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं बोलूँगी कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो सोसाइटी को कैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कैसे केमिकल फ्री होना है, कैसे आप टॉक्सिन से दूर रहेंगे, ये सब में मैं काम करती हूँ। तो यहाँ के बहुत सारे उसी टाइप लोगों से मिलके जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और हम अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और एक दूसरे को जाने ऑल ओवर इंडिया जो भी है, तो बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू टू ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार राउत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सुश्रुत हॉस्पिटल भुवनेश्वर। मेरे को आज अवार्ड मिला है ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम से, इंडियन आइकॉन अवार्ड 2024। ये जो अवार्ड दिया जाता है, जैसे मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं कुछ अच्छे काम करता हूँ इसलिए वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और ये जो अवार्ड होता है, ये अवार्ड एक जिसको दिया जाता है उसका हौसला बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो आगे जाके अच्छे काम कर सकता है।
इसलिए अवार्ड दिया जाता है। और मैं थैंक्स करता हूँ ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम का, जो जितने भी महत्वपूर्ण आदमी है जो पार्टिसिपेंट्स अरेंज किया है ये अच्छे वाला कॉन्फ्रेंस को, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर मोतीलाल जियालाल चौधरी, नागपुर महाराष्ट्र से। हम लोगों का माई एसेट्स इंफ्रा माई ग्रुप एंड माई फाउंडेशन संस्था है जो एनजीओ है। हम एनजीओ के माध्यम से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ट्री प्लांटेशंस एवं बहुत सारे वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके तहत लास्ट ईयर हमको सोशल इसमें डॉक्टरेट की उपाधि मुझे मिली थी। और इसी अवसर पर आज ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम के माध्यम से इंडियन आइकॉन अवार्ड 2024 आयोजित किया गया था। माननीय जितेंद्र कुमार जी के माध्यम से हमें इस अवार्ड फंक्शन में आमंत्रित किया गया और नॉमिनेट किया गया। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यहाँ पूरे भारत भर से लगभग 28 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए थे, लगभग 10 कंट्री के पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हुए थे और उनमें से हम भी एक है। और आज यह इंडियन आइकॉन अवार्ड 2024 हमें प्राप्त हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त हुआ। हम और भी आगे चल के आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य करेंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने अपनों के लिए, जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, व्यावसायिक प्रगति को हम देश में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ में मेरी वाइफ एडवोकेट रूबी चौधरी भी है। हेलो, मैं एडवोकेट रूबी चौधरी और मैं हमारे माई ग्रुप के रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है उसमें लीगलाइज जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो मेरे द्वारा होते हैं। मैं इनकी बेटर हाफ भी हूँ और लीगल एडवाइज़र भी हूँ माई ग्रुप की। ये इवेंट अटेंड करके एक्चुअली इसके पहले भी हमने काफ़ी इवेंट किया है, बट इस इवेंट का जो लेवल है ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम का, ये कुछ और ही है। काफ़ी अच्छा लगा, वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है और हम सेटिस्फाइड हैं यहाँ आकर। प्रॉपरली हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से है, तो माई ग्रुप के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एक्सेलेंस ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम के लिए। मिस डॉक्टर एडवोकेट दर्शना राजवंश, मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूँ और मुझे WHRPC से ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है। टिल टुडे मुझे 18 अवार्ड्स मिले हैं इन सोशल वर्क। मेरी NGO है, आई हैव माई NGO राजवंश केयर फाउंडेशन, जिसमें स्पेशली मैं विमेन के लिए काम करती हूँ। अर्लियर आई वॉज वर्किंग इन रूरल एरिया, पर अब हमने एक्सटेंशन भी किया है जहाँ पे विमेन सैनिटेशन, जब प्रेगनेंसी में कुछ इश्यू आते हैं तो हम डॉक्टर्स की टीम को भेजते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, सो लीगल टीम को भेजते हैं। सो वी आर स्पेशली फोकस्ड टू विमेन बिकॉज बाकी फैसिलिटेशन से ज़्यादा ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट, ड्यू टू द रीज़न कि विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है कि नाउ डेज विमेन्स आर वर्किंग, सो साथ में एक डोमेस्टिक काम वो हैंडल नहीं कर पाते ड्यू टू द हेल्थ। सो एक सोशल स्ट्रक्चरिंग के लिए, एक कल्चरल स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विमेन एम्पावरमेंट करें ऑन द ग्रास रूट लेवल। दैट्स व्हाट आई डू एंड आज मुझे अवार्ड मिला उस चीज़ के लिए जो मैंने 7 सालों से सिंस 7 years आई एम एक्सपीरियंसिंग कि किस फील्ड में काम करना चाहिए। दैट वाज कम्प्लीटली द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड द सोशल स्ट्रक्चर। थैंक्स टू रवि जी, थैंक्स टू NHRO कि उस वजह से हमें आज ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक और स्टेज मिला जहाँ से हम और आगे जा सके। और कहते हैं ना कि जो धार नहीं रुकती चट्टानों से कभी, जो धार नहीं रुकती चट्टानों से कभी, सागर सिर्फ उसका ही अभिवादन करता है। तो थैंक यू सो मच। My name is Advocate Bhomik and I represent the firm Q Legal. So my firm operates in a fashion that we help those people who cannot come to the court because they don't have money to afford the advocates. So we mainly take care of the pro bono cases, and based on the last 2 years experience in the pro bono cases, I have got more than 110 pro bono cases and I have won all the pro bono cases, and based on that then I have been awarded today by the Global Excellence Forum 2024 and I have been awarded by the ministry. My name was nominated by the ministry itself and after that I have been nominated and I have been awarded today. I'm Amresh Kumar है, founder and CEO of the Prayas India. The Prayas India basically कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोचिंग है जो डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करता है, जैसे कि UPSC सिविल सर्विसेज, स्टेट PCS, इसके अलावा बैंकिंग, SSC, रेलवे, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। इसके अलावा कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक MBA एंट्रेंसेस
लॉ एंट्रेंसेस। तो द प्रयास इंडिया लगातार स्टूडेंट्स को हेल्प करता आ रहा है। इसमें बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनके हेल्प से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और आज ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम ने हमें इंडियन आइकन के अवार्ड से नवाजा है। तो सबसे पहले ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम को बहुत बहुत थैंक यू। और हम विश करते हैं कि हम और भी ज़्यादा इसी तरह से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफलता दिलाएंगे। Today I'm very much happy that Global Excellence Forum awarded me in Youth Activist Under 40, that I have been awarded as a influential youth of the year. I have been working since last 10 years in the field of empowering the youth, coaching the youth